Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with set number 10 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set is an arrangement which I've taken from previous year's SimCats, and the set says Diljit Dosanjh, a famous Indian singer, is planning to organize his event, the Illuminati, in 7 different cities, namely Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, Pune, Chandigarh and Ludhiana over the first 7 months of 2024, such that he will visit 3 different cities every month and each city exactly 3 times during the period. Delhi, Gurugram, and Noida are the city of NCR, Mumbai and Pune are the city of Maharashtra, while Chandigarh and Ludhiana are the city from Punjab region. The following points are known. He'll visit either one or two cities from NCR, up to one city from Maharashtra, and up to one city from Punjab region every month. Once he visit Mumbai or Ludhiana in a particular month, he will not visit the city for the following 2 months. He will visit two cities from NCR in the March as well as in May. He will not visit Gurugram and Noida in the same month. He will not visit Mumbai and Chandigarh in the same month. He will visit a different combination of 3 cities every month. क्वेश्चन भी देख लेते. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स आउट ऑफ 7 कैन वी डेफिनेटली डिटरमाइन एटलीस्ट 2 cities to be visited by Diljit Dosanjh? Question number 2, in which of the following month will he visit both the Delhi and Pune? Additional information is given. He will not visit the Delhi in 2 consecutive months. If his first visit to the Delhi will be in the March 2004, if he visit Pune and Noida both in the same month, he will not visit any other city from NCR in that month. Question number 3 आ गया. For how many months out of 7 can we definitely determine all the 3 cities visited by to be visited by Diljit Dosanjh? Question number 4 बोला which of the following combination cannot be correct. ठीक है. एक स्टैंडर्ड ग्रुपिंग इन कंडीशनलिटी का सेट, जैसा कि पीछे वाले सेट में हमने करा था ग्रुपिंग इन कंडीशनलिटी का, सेम चीज यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ सेट है, जिसमें एक बोला हुआ है कि एक फेमस सिंगर है जिनका नाम है दिलजीत दोसांझ, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज हिज फ्लैगशिप इवेंट विच इज इल्यूमिनाटी, जो कि 7 महीने में हो रहा है और 7 महीनों में 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सिटी में हो रहा है और हर गिवन 7 शहर में से 3 बार हो रहा है. तो बेसिकली 7 3 21 अपने को सेग्रीगेट करना, मतलब 7 महीने, उन 7 महीनों में हर महीने में 3 सिटीज हो रही हैं और 7 महीनों में जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीज है वो डिफरेंट होने वाला है. ऑल्सो ये कह दिया इसने कि हर सिटी को एक्जैक्टली 3 बार वो परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. इसके अलावा कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन, जिसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वी आर सपोज टू आंसर. तो मैंने क्या करा हुआ है, आई क्रिएटेड दिस टेबल जिसमें कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के मंथ लिखती है. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट एंड देन फिगर आउट करते क्या है. दिलजीत इल्यूमिनाटी कर रहे हैं 7 डिफरेंट सिटीज, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, लुधियाना, ये हो गया. ठीक है. यहां से उठाते हैं सच दैट ही विल विजिट 3, हर शहर को कम से कम वो 3 बार तो विजिट कर ही रहा है, एंड एग्जैक्टली 3 times ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक है. दिल्ली, गुरुग्राम एंड नोएडा आर द सिटी फ्रॉम एनसीआर. एनसीआर में क्या आने वाला है? एनसीआर में आने वाला है दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा. ठीक है. पंजाब में आने वाला है लुधियाना, चंडीगढ़, एंड महाराष्ट्र में आने वाला है पुणे और मुंबई. ये दे दिया अपने को. ठीक है. इसके अलावा कह रहा है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नो. ही विल विजिट 1 or 2 cities फ्रॉम एनसीआर. एनसीआर से ये या तो ही विल विजिट 1 or 2 cities फ्रॉम एनसीआर, यानी कि 1 या तो 2. ठीक है. अप टू 1 city फ्रॉम महाराष्ट्र. अप टू 1 city फ्रॉम महाराष्ट्र मतलब 0 to 1 कह सकते हैं, बिकॉज अप टू 1 है तो प्रोबेबली एक 0 वाला केस भी हो सकता है. एंड अप टू 1 city फ्रॉम पंजाब एवरी मंथ. पंजाब के लिए भी अप टू बोला हुआ है, तो यानी कि 0 से 1 हो सकता है. ऐसा ये अपना पॉइंट नंबर 1 अपने को कहना चाह रहा है. ठीक है. वंस ही विजिट मुंबई और लुधियाना इन अ पर्टिकुलर मंथ, ही विल नॉट विजिट द सिटी फॉर द फॉलोइंग 2 months. अगर वो मुंबई और लुधियाना किसी मंथ में जाता है तो अगले 2 महीने के लिए नहीं जाने वाला. अब अपने को क्या पता है, मुंबई और लुधियाना ये दोनों वैसे शहर है जहाँ पे वो 3 बार जाने वाला है. अब 7 में से 3 बार जाने वाला है और अगले 2 महीने में नहीं जाने वाला. वो कब पॉसिबल है? जब वो जनवरी में जाएगा, फिर 2 नहीं जाएगा, अप्रैल में जाएगा, फिर 2 नहीं जाएगा, वो जुलाई में जाएगा. सो अगर इस स्टेटमेंट पे जाए तो अपने को जो यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? जैन का, फेब, अप्रैल का, जुलाई का, यानी कि इनका ये तो फिक्स हो गया. यानी कि यहाँ पे मुंबई, लुधियाना. ठीक है. मुंबई, लुधियाना. ठीक है. मुंबई एंड लुधियाना.
फिर से लाइन पढ़ते हैं, वंस ही विजिट मुंबई और लुधियाना इन अ पर्टिकुलर मंथ ही विल नॉट विजिट द सिटी फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग 2 मंथ। मुंबई लुधियाना जा रहा है, अगले 2 महीने के लिए जा रहा है, अगले 2 महीने के लिए जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है, और एग्जैक्टली 3-3 बार उनकी विजिट भी हो गई। ठीक है, he will visit from Delhi NCR, मतलब from NCR in March as well as in May। उसने बोला हुआ है कि मार्च और मई के मंथ में वो 2 सिटीज ऑफ एनसीआर जा रहा है। एनसीआर की 2 सिटीज कौन सी होने वाली है? वो ये होने वाली है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में से कोई एक। ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में से कोई 2 शहर आने वाले। अच्छा, थोड़ा और पढ़ते हैं। He will not visit गुड़गांव एंड नोएडा इन द सेम मंथ। अगले ही मंथ में कह रहा है कि गुड़गांव और नोएडा वो सेम मंथ में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को जरा मर्ज करो तो थोड़ा तुम्हें क्लिक करेगा। पॉइंट 3 कह रहा था कि एनसीआर के 2 शहर जाना ही जाना है मार्च और मई के मंथ में, तो वो 2 शहर कौन से हो सकते थे? दिल्ली गुड़गांव, गुड़गांव नोएडा, या दिल्ली नोएडा। और अगले में कह रहे हैं कि गुड़गांव नोएडा वाला केस नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पे दिल्ली का आना फिक्स्ड है और यहाँ पे भी दिल्ली का आना फिक्स हो जाएगा। इसके साथ कौन आएगा? इसके साथ गुड़गांव या नोएडा में से कोई एक शहर, नोएडा और गुड़गांव में से कोई एक शहर आएगा, ऐसा। ठीक है, पॉइंट 3 और 4 को मर्ज करने के बाद हमने ये फिगर आउट करा। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा था कि एनसीआर के 2 शहर आने, वो 2 शहर ही हो गए, और 4 में कह रहा था कि गुड़गांव और नोएडा साथ में नहीं आ सकता, तो दोनों में से किसी एक को हमने यहाँ पे रख लिया। ही विल नॉट विजिट मुंबई एंड चंडीगढ़ इन द सेम मंथ। मुंबई और चंडीगढ़ वो सेम मंथ में नहीं करता, यानी कि चंडीगढ़ यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे भी नहीं आएगा इस वाले जगह पे। ठीक, चंडीगढ़ यहाँ पे भी नहीं आने वाला, यानी कि मुंबई और चंडीगढ़ वो सेम मंथ में नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, he will not visit मुंबई एंड चंडीगढ़ इन द सेम मंथ। ठीक है, he will visit a different combination of 3 cities every month। हर महीने वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीज हो हमेशा चल रहा होता, मतलब अलग अलग आने वाला। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे अगर ध्यान दो तो 2 we have totally utilized, 3 and 4 we have utilized, 5 we have mentioned over the rough work in the rough work। पॉइंट नंबर 6 और 1 है जिस पे दिमाग लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि हर मंथ कम से कम वो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 एनसीआर के शहर होने चाहिए, तो यानी कि जनवरी में एक कोई शहर आना बाकी है दिल्ली एनसीआर का, ऐसे ही मई में आना बाकी है और जुलाई में भी आना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शहर होना चाहिए? वो हो सकता है तुम्हारा दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक, और दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक। अब थोड़ा ध्यान दो तो दिल्ली के जो 3 आने वाले थे, एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा इन तीनों में से कहीं एक जगह पे आएगा। गुड़गांव के जो 3 आने वाले थे जिसमें से एक इन दोनों में से एक है और इन तीनों में से कोई एक है, एंड सेम इज फॉर नोएडा। ठीक, यानी कि मुंबई का 3 आ चुका है, मुंबई का 3 आई एम डन, लुधियाना का 3 आई एम डन, दिल्ली का 3 आई एम डन, आई एम लेफ्ट विद गुड़गांव और नोएडा के 2-2। ठीक है, अब मेरे को चंडीगढ़ और चंडीगढ़ और पुणे के बारे में देखना है। पुणे के बारे में तो यार अपने को आइडिया ही नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ का जो 3 है वो कहाँ पे आएगा, जरा ये दिमाग लगाते हैं। चंडीगढ़ यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे आ सकता है, चंडीगढ़ यहाँ पे आ सकता है, चंडीगढ़ यहाँ पे भी आ सकता है, चंडीगढ़ यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, अपने पास ये पता है कि हर महीने वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में से कोई एक आने वाला था, तो यानी कि यहाँ पे गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक आएगा, गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक आएगा। अब ये क्या लॉजिक है, क्योंकि दिल्ली का 3 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो फरवरी मंथ में और जून मंथ में जो एनसीआर का एक शहर हो सकता था वो गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। अगर दोनों दे दूंगा तो जून के अंदर वी वोंट बी लेफ्ट विद एनी ऑफ दी पॉसिबिलिटी। यहाँ पे अपने पास पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी होगी। अब ध्यान दो तो गुड़गांव का एक यहाँ पे मिला, इन दोनों में से कहीं एक मिलने वाला है, इन तीनों में से दूसरा मिलने वाला है, और इन दोनों में से कोई एक मिलने वाला है। सेम इज फॉर नोएडा, नोएडा में एक यहाँ मिलने वाला है, एक इन तीनों में से कोई एक मिलने वाला है, और तीसरा यहाँ मिलने वाला है। नाउ आई एम डन विद गुड़गांव एंड नोएडा ऑल्सो। ठीक है, अब अपने पास कौन बच रहा है? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के बाद अपने पास बच रहा है कि भाई चंडीगढ़ एंड पुणे। चंडीगढ़ और पुणे के लिए अपने को क्या जगह मिली है? यहीं पे देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 चंडीगढ़ तो नहीं आ सकते, तो यानी कि एक चंडीगढ़ और पुणे यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चंडीगढ़ और पुणे यहाँ देना पड़ेगा। सही है, यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है चंडीगढ़ और पुणे,
ठीक, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, चंडीगढ़ और पुणे में से कोई एक, जो बचा हुआ बंदा है वो है पुणे और चंडीगढ़ में से कोई एक। यानी कि चंडीगढ़ के जो 3 पॉसिबिलिटी थी, मतलब 3 जो आने वाला था वो कहाँ है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इन दोनों में से कोई एक है। सेम इज फॉर चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और इन दोनों में से कोई एक अपने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर अपने को बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब पॉइंट नंबर 6 है, जिस पे थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 से शायद अपनी केस और फिल्टर हो जाए। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि हर बार वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में चंडीगढ़ पुणे गुड़गांव, चंडीगढ़ पुणे नोएडा अलग आ जाएगा, दिल्ली नोएडा पुणे, दिल्ली नोएडा गुड़गांव, मुंबई लुधियाना दिल्ली, मुंबई लुधियाना गुड़गांव, मुंबई लुधियाना नोएडा। तो यार ये सातों के अंदर मैं पॉसिबिलिटी वाइज भी चेक करूँ तो मेरे को अलग अलग कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं। व्हाट आई कैन डू इज नथिंग। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर अगर आपने ध्यान दो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला था, वही है जो अपने को सेट को पूरा क्रैक करने पे फोकस मतलब हेल्प करेगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 बोला फॉर हाउ मेनी ऑफ द आउट ऑफ द 7 मंथ कैन वी डेफिनेटली डिटरमाइन एटलीस्ट 2 सिटीज टू बी विजिटेड बाय दिलजीत दोसांझ। एटलीस्ट 2 बोला हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट 2 की बात करें तो एक तो जनवरी होना चाहिए, ठीक है, फरवरी होना चाहिए, ठीक है। मार्च के लिए यार एटलीस्ट 2 सिटी तो नहीं बता पा रहे हैं। अप्रैल होना चाहिए, ठीक है। मई नहीं बता पाएंगे। जून होना चाहिए, ठीक है। जुलाई होना चाहिए, यानी कि गिवन 7 में से मार्च एंड मई, ये 2 मंथ है। मार्च एंड मई इज द मंथ वेयर आई कैन नॉट डिटरमाइन एटलीस्ट 2 सिटी। बाकी 5 के लिए आई कैन डिटरमाइन दी 2 सिटीज, यानी कि पहले का आंसर क्या होना चाहिए 5, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ विल ही विजिट द बोथ दिल्ली एंड पुणे। किस मंथ में वो दिल्ली और पुणे साथ में जा रहा है। तो दिल्ली और पुणे मार्च में जा सकता है, दिल्ली और पुणे मई में भी जा सकता है, दिल्ली और पुणे ऑप्शन से जाते हैं। डेफिनेटली मार्च, डेफिनेटली मई, ईदर मार्च और मई, नीदर मार्च और मई। अच्छा यार अभी देखो यहाँ पे देखा डेफिनेटली मार्च, नॉट श्योर, डेफिनेटली नहीं कर सकता बिकॉज दिल्ली एंड पुणे इज पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली मई भी नहीं हो सकता, ईदर एंड मार्च और मई होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे दिल्ली तो फिक्स है, पुणे का इट कुड बी ईदर और वाला केस। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ईदर मार्च और मई। ऑप्शन नंबर सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। He will not visit the Delhi in 2 consecutive months। वो कह रहा है कि दिल्ली वो 2 consecutive month विजिट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो दिल्ली 2 consecutive month नहीं कर रहा है तो फिर क्या केस बनेगा, उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा पढ़ लेते क्या बोला हुआ है। He will not visit Delhi in 2 consecutive months। His first visit to the Delhi will be in the March 2024। If he visit Pune and Noida both in the same month, he will not visit the any other city from Delhi NCR in that month। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। पहले ये दिल्ली वाले को फिक्स करते हैं कि दिल्ली को वो कंसिक्यूटिव नहीं कर रहे हैं। दिल्ली का जो पहला विजिट है दैट हैज टू बी इन मार्च, ठीक है। तो अगर इट हैज टू बी इन मार्च तो दिल्ली का पहला मार्च में आएगा, यानी कि दिल्ली का यहाँ पे आ गया। ये कंपनी किसके साथ होगा नहीं पता। दिल्ली का जो कंसिक्यूटिव नहीं तो दिल्ली को यहाँ पे देना पड़ेगा एंड दिल्ली को यहाँ पे भी देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा मुंबई, लुधियाना और दिल्ली, ठीक है। अच्छा ये पार्ट आ गया। दिल्ली के लिए हमें तीनों यूनिकली डिटरमाइन कर लिया। मुंबई लुधियाना यहाँ पे फिक्स था, ठीक है। यहाँ से दिल्ली गायब हो गए, कुछ और आ सकता है। यहाँ पे चंडीगढ़ पुणे फिक्स्ड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मुंबई और लुधियाना फिक्स्ड है। यहाँ पे ध्यान दे तो चंडीगढ़ एंड पुणे फिक्स्ड है, ठीक है। अब अपने पास पहला इंफॉर्मेशन बोला था कि दिल्ली कंसिक्यूटिव नहीं आने वाला और पहले बार दिल्ली जो है यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ यू विजिट पुणे एंड नोएडा बोथ इन द सेम मंथ। किसी मंथ वो पुणे और नोएडा जाता है, ठीक है। किसी मंथ में ऐसा जहाँ पे वो पुणे और नोएडा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, पुणे एंड नोएडा, ठीक है। किसी मंथ में वो पुणे एंड नोएडा जाता है, इन दैट मंथ ही विल नॉट विजिट एनी अदर दिल्ली एनसीआर सिटी, ठीक है। उस मंथ में वो किसी एनसीआर सिटी पे और नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्योंकि मुंबई लुधियाना है तो यहाँ पे इट कुड बी गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक, ठीक, क्योंकि दिल्ली यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी आने वाला, मुंबई लुधियाना के बाद नोएडा एंड गुड़गांव में से कोई एक, ठीक है। अच्छा चंडीगढ़ पुणे है, पुणे के साथ यहाँ पे मैं
गुड़गांव और नोएडा दोनों दे सकता हूँ। क्यों दोनों दे सकता हूँ? बिकॉज नोएडा और पुणे होता है तो उसके साथ कोई सिटी नहीं आ सकती, एनसीआर की ऐसा कहना चाह रहा है, बट यहाँ पे कोई और शहर आ ही नहीं रहा, तो पॉसिबिलिटी में यहाँ पे गुड़गांव और नोएडा दोनों आ सकता है। ठीक है, अच्छा दिल्ली के बारे में लिखा है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और ये मार्च के लिए तो यार कुछ भी क्लियरली कह पाना तो मुश्किल है। ठीक है, अभी तो यही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि अगर पुणे और नोएडा आता है तो ये नहीं आ पाएगा, बट मैं यहाँ पे चंडीगढ़ और नोएडा ले सकता हूँ, पुणे और गुड़गांव ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ और नोएडा भी ले सकता हूँ, तो यहाँ से ना यार चीजों को थोड़ा लिख पाना मार्च के लिए डिफिकल्ट है। सेम इज फॉर मे मंथ। ठीक है, कैन वी से समथिंग फॉर जून? जून के लिए पुणे है, चंडीगढ़ है, तो यहाँ पे गुड़गांव नोएडा में से कोई एक होगा, ये पता चल रहा है, गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक। ठीक है, यानी कि मार्च एंड मे मंथ अभी भी अपना सीवीडी वाले सिचुएशन में। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं ना। अगर ऐसा होता है तो फॉर हाउ मेनी ऑफ द हाउ मेनी मंथ आउट ऑफ 7 कैन वी डेफिनेटली डिटरमाइन ऑल द 3 सिटी विजिटेड बाय दिलजीत दोसांझ? ऑल द 3 सिटीज जनवरी के लिए नहीं हो पा रहा, फरवरी के लिए भी नहीं हो पा रहा है, दिल्ली मार्च के लिए तो ऑब्वियसली नहीं पता, जुलाई के लिए वी आर एबल टू यूनिकली डिटरमाइन 3 शहर, यानी कि आउट ऑफ 7 खाली एक मंथ ऐसा जहां पे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 cities which he visited in that particular month, जुलाई मंथ के बारे में। ठीक है, which of the following combination cannot be correct? दिल्ली, गुड़गांव एंड पुणे विजिटेड इन मार्च। दिल्ली, गुड़गांव और विजिटेड पुणे, यार ट्रू तो लग रहा है। ठीक है, बाकी चेक करते हैं। दिल्ली, नोएडा एंड चंडीगढ़ टू बी विजिटेड इन मार्च। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ टू बी विजिटेड इन मार्च। दिल्ली, नोएडा, यार ये भी दिख रहा है दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, क्योंकि दिल्ली, नोएडा, पुणे होता तो पंगा होता। ठीक है, नोएडा, मुंबई एंड लुधियाना टू बी विजिटेड इन जनवरी। नोएडा, मुंबई, लुधियाना, ये भी पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डी होना चाहिए। डी में क्या बोला? गुड़गांव, मुंबई एंड लुधियाना टू बी विजिटेड इन जून। गुड़गांव तो है, मुंबई एंड लुधियाना टू बी विजिटेड इन जून। हाँ, ये वो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, मुंबई और लुधियाना तो यार पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हैज टू बी दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई वुड रेट इज ऐसा मॉडरेट वाला सेट, मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इसी से मॉडरेट में मॉडरेट वाला सेट है। 10 से 12 मिनट वुड बी अ गुड टाइम। थोड़ा केसेस बनाने का लॉजिक है इसके अंदर। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया जहाँ पे आप केसेस डेवलप कर पाओ एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी केस बिल्डिंग वाला पार्ट। ठीक है, आई होप आपने सिमकैट 3 लिखा होगा। सिमकैट 3 में देयर वाज अ स्मॉल चेंज, दिस टाइम वी हैड 5 क्वेश्चन के 4 सेट, 20 क्वेश्चन थे अगर आपने देखा होगा। एंड उसमें एक सेट था जिसमें कि वो कोकोनट वाला सेट था, वो काफी हद तक डुएबल था। वेन डायग्राम वाला थोड़ा ज्यादा, मतलब उसके बाद वो वाला था। एंड थर्ड वुड बी दी सेट नंबर 3। ठीक है, इस ऑर्डर में अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो ही वुड हैव बीन एबल टू फिगर आउट अ गुड नंबर। इनफैक्ट मैथ वाज ऑन अ इजियर साइड, मतलब अर्थमेटिक वाज प्रीटी डुएबल, है ना। मतलब आपको 6 से 7 क्वेश्चन एकदम क्लियर कट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, जो कि थोड़ा टाइम देते देते 3 से 4 मिनट में यू वुड हैव बीन एबल टू फिगर आउट। ठीक है, इन केस आपने मिस करा है तो डू राइट दैट पेपर एंड डू रिव्यू। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।